اب ایک اور چیز جس کی طرف ہمارا آنا ضروری ہے، وَالْأَنفُسُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہم نے صحابہ کی جانیں لی، ان کو آزمایا، ہم نے نبیوں کی جانیں لی، ان کو آزمایا، ہم نے جنگوں میں بڑے بڑے صحابہ کو شہید کر کے ان کے گھر والوں بیوی بچوں کو آزمایا۔ مسلمانوں ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ کبھی فیروز آباد کے لوگوں کی طرح پولیس کی گولیوں میں مارے جائیں گے، ہم ان کی جانیں لے کر آزمائیں گے۔ کبھی دلی کی سرزمین پر دنگے کی حالت میں لوگ مارے جائیں گے، ہم ان کی جانیں لے کر آزمائیں گے۔ کبھی کرونا وائرس نافذ کر کے ہم تمہاری جانیں لے کر تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیں میرا کون بندہ اتنی بڑی مصیبت میں میرا دربار پکڑتا ہے، مجھ سے فریاد کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا میرا در چھوڑ کر کہیں اور سلامی ٹھوکنے لگتا ہے۔ ایسا تو نہیں، ان تمام مصیبتوں میں پریشان ہو کر وہ ویسی بولی بولنے لگے جیسے آج مولوی لوگ اپنی پریشانی سے بچنے کے لیے حکومت کے تلوے چاٹنے لگتے ہیں۔ حکومت کے تلوے جیسے آپ کا یہ کون ہے، زیدی، پورا نام ہماری زبان سے مت نکلوائیے، جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک فلم بنائی، اس کی ڈائریکٹر خود بنا، حضرت عائشہ کو زانیہ قرار، ایک بدچلن عورت قرار دیا۔ میرے بھائیوں، ایسے آدمی ہیں جو حکومت کے تلوے چاٹنے لگتے ہیں، جیسے تسلیمہ نسرین ہے، مسلمان کلمہ پڑھ کر حکومت کے تلوے چاٹنے لگتی ہے، جیسے سلمان رشدی ہیں۔ اور اس زمانے میں بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا فیصلہ ہو جانے کے بعد 5 ایکڑ زمین لینے کے لیے ہمارے مسلمانوں میں لکھنؤ کے کچھ مولوی بھی یوگی کے دربار میں جا کر بھیک مانگنے لگے، یہ 5 ایکڑ زمین ہمیں دے دو۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھیں کہ تمہاری جانیں لے کر تم صبر کرتے ہو، میرا ہی دامن پکڑے رہتے ہو، یا مجھے چھوڑ کر غیروں کے تلوے چاٹتے ہو، حکومت کے تلوے چاٹتے ہو، ظالموں کے پاس جاتے ہو۔ ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانیں بھی ہم لیں گے۔ دیکھیں ان جانوں میں کہ جانے کے بعد تم میرا ہی دامن پکڑتے ہو، مجھ سے ہی فریاد کرتے ہو، یا کہیں اور۔ دلی کی شاہین باغ کی اس عورت کو جرجیز سیلیوٹ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، جس کا 4 مہینے کا بچہ سردی کھا کر مر جاتا ہے، اس کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے۔ میڈیا والے اس سے پوچھتے ہیں یہ بچہ کیسے مرا، اس نے کہا ٹھنڈی میں پروٹیسٹ پہ بیٹھی تھی، سردی لگ گئی، مر گیا۔ اب کیا کرو گی؟ اس نے کہا میرے اور بھی بچے ہیں، ہم اپنے دیش کے سمویدھان کو بچانے کے لیے ان بچوں کو لے کے دوبارہ پھر پروٹیسٹ میں بیٹھیں گے، پھر ہم جائیں گے۔ ایسی عورتوں کو سلام پیش کرتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، ہم دیکھیں گے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان لے کر کہ تم ہمارے ہی دروازے پر دستک دیتے ہو، یا میرا در چھوڑ کر زندے اور مردوں کے پاس چلے جاتے ہو۔ ہم آزمائیں گے تمہیں، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہر حال میں ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہارے پھل فروٹ، کھیتی باڑی، اناج غلہ ہم برباد کر کے بھی آزمائیں گے۔ کبھی اتنی زور کا سیلاب لائیں گے تمہاری پوری کی پوری کھیتی برباد ہو جائے گی، کبھی ایسی بارش لائیں گے تمہارے کھیتوں کا سارا اناج تہس نہس ہو جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ میرے بندے ان تمام مصیبتوں میں میرا ہی دامن دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یا کہیں اور۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، میرے جو بندے خوشی خوشی ان مصیبتوں کو جھیل لیں اور اس امتحان میں پورے اتریں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے ان بندوں کو جنت کی بشارت دے دو، میرے ان
खुशखबरी सुना दो, मेरे उन बंदों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। ये लीजिए, तब जन्नत मिलेगी। भारत में हमें जगह मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह कह रहा है इन मुसीबतों में पूरा उतर जाओगे तो हम तुम्हें जन्नत में जगह जरूर देंगे। सोचिए, यह आजमाइश है हमारे ऊपर, आजमाइश। नबियों को, रसूलों, सबको आजमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नजर डालो, उनको आजमाया। अपनी बस्ती ऊर छोड़ते हैं, अपना मुल्क इराक छोड़ते हैं, अपनी बस्ती छोड़ते हैं, अपना मुल्क छोड़ते हैं, अपनी बीवी सारा के साथ मुल्क शाम में दाखिल होते हैं। बादशाह की नजर सारा के हुस्न और जमाल पे पड़ती है, वो उनसे बदकारी की नीयत से आगे बढ़ता है, नाकाम होता है। दोबारा शैतान ने फिर बहकाया, फिर नाकाम होता है। तीसरी बार बहकाया, नाकाम होता है। उसने फिर देख लिया ये नेक आदमी है इब्राहिम, उनकी बीवी पर हम गलत नजर भी नहीं डाल सकते, छूना तो बहुत दूर की बात। उसने गिफ्ट दे दिया अपनी एक खूबसूरत हसीन और जमील लड़की, बेटी या बहन या कनीज, उसने हजरत इब्राहिम सारा को गिफ्ट कर दिया। हजरत सारा ने इस खातिमा को हजरत इब्राहिम को दे दिया। हजरत इब्राहिम ने उनको आजाद करके उनको अपनी ज़ौजियत में अपनी बीवी बना लिया। जानते हो, जो उस बादशाह ने जिसने इब्राहिम की पहली बीवी सारा पर गलत नजर डाली, उस बादशाह ने जो लड़की इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी उसका नाम हाजरा था। अल्लाह ने उसी हाजरा से हजरत इब्राहिम को एक बेटा दिया, जो बेटा इस्माइल के नाम से जाना जाता है। यहाँ हाजरा से बेटा पैदा होता है, उधर हुक्म होता है अपनी बीवी हाजरा को और बेटे को एक बियाबान जंगल में छोड़ दो। इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को लेकर मैदान मिना में जाते हैं। इब्राहिम, यहाँ हम कहाँ गए? यहाँ तो दूर दूर तक दरख्तों का पता नहीं है, चिड़ियों का पता नहीं है, दूर दूर तक आबादी का पता नहीं है, हम यहाँ रहेंगे। इब्राहिम ने कहा हम नहीं, सिर्फ तुम यहाँ अकेली रहोगी। इब्राहिम, ये क्या कह रहे हो? जाने लगे, मेरे शौहर मुझे इस बियाबान जंगल में अकेले छोड़ के जा रहे हो। कोई जवाब नहीं देते। अपने बेटे इस्माइल को जमीन पर लिटाती है, इब्राहिम का पीछा करती है, पीछे से कुर्ता खींचती है। इब्राहिम, हक ज़ौजियत में क्या आपने मुझे ना अहल पाया? क्या मैंने आपको कभी शिकायत का मौका दिया? बीवी हूँ आपकी, मैंने आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में कोई कमी की है? नहीं मेरी बीवी। फिर क्या बात है मुझे छोड़ के जा रहे हो? मेरी बीवी, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं। फिर जाने लगे, फिर पकड़ के खींचा। आ इब्राहिम, जा रहे हो, लेकिन मेरा कसूर बताओ कि मुझे अकेले क्यों छोड़ रहे हो? मेरी बीवी, मेरे पास इसका भी जवाब नहीं। फिर हाथ झटका, फिर जाने लगे। बीवी ने फिर खींचा, इस्माइल कहाँ रहेगा? यही। मैं कहाँ रहूंगी? यही। तुम कहाँ रहोगे? पता नहीं, पता नहीं। कब आओगे? ये भी पता नहीं। कल आ जाओगे? नहीं। बीवी, कब आओगे? इब्राहिम, एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, ये भी हो सकता है कि ना आऊं। बीवी, मैं यहाँ अकेली, जब भी तुम आओगे मैं अपनी इज्जत व आबरू को कैसे बचा पाऊंगी? कितने दरिंदे काफिले यहाँ से गुजरेंगे, चोर गुजरेंगे, लुटेरे गुजरेंगे। इब्राहिम, मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत कैसे होगी? खाने पानी का इंतजाम कैसे होगा? इब्राहिम कहते हैं, हाजरा, मेरे पास तेरे सवाल का भी जवाब नहीं है। फिर आगे बढ़े, उसने फिर खींचा और अपने गले से लगाते हुए कहा, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन इतना बताओ अपनी बीवी को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? जब आओगे तो मुझे पाओगे या नहीं? मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो? इला, कुरान ने हाजरा के उस लफ्ज को रिकॉर्ड कर लिया। इला मन ततरुकू
तुरकूना, इब्राहिम इतना बताओ कि मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अब बीवी की आंखों में आंखें डाली, फरमाया बीवी अब तूने सवाल सही किया, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? तो सुन, इल्लल्लाह, मैंने तुझे और इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है। बीवी मुस्कुराई, कहती अब जहां जाना हो आराम से चले जाओ, अब आपने मुझे उस जात के सुपुर्द कर दिया है जो अब तक मुझे बचाता रहा, मेरी हिफाजत करता रहा, आगे भी करेगा। इज़न ला युज़ीउनल्लाहु अबदा, मेरा रब हमें ज़ाय नहीं करेगा, मेरा रब हमें बर्बाद नहीं करेगा। क्यों डरते हो सीए से, क्यों डरते हो एनआरसी से, क्यों डरते हो एनपीआर से? हमारा रब हमें ज़ाय नहीं करेगा, उसने हमें पैदा किया है, इस दुनिया में उसने हमें वजूद बख्शा है। वो एक दरवाजा बंद करता है तो 1000 दरवाजे खोल देता है। लेकिन हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन। मुसलमानों, तुम कासे गधाई लेकर भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम हुकूमतों के सामने अपना दामन फैलाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम किसी के सामने अपना हक मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम किसी के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। हम तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें सर बुलंदी देंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, शर्त यह कि तुम अपने अंदर पहले जज्बे इस्लाम पैदा कर लो, ईमान पैदा कर लो। हुकूमत देना मेरा काम, इज्जत देना मेरा काम, ईमान पैदा करना तेरा काम। ये है फलसफा। हमारे दिलों से डर निकलने की यही एक शक्ल और सूरत है, यही एक शक्ल और सूरत है हमारे दिलों से। ईमान मजबूत करो, अल्लाह अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। हम करें तो। हाजरा का वाकया सुना, कितना जबरदस्त तवक्कुल, भरोसा। जाओ एक औरत को अकेले छोड़ के देखो, नहीं अकेले छोड़ा, बियाबान जंगल में छोड़ा, ये तो जनरेटर चल रहा है, लाइट जल रही है, वहां लाइट भी नहीं है, दूर तक पेड़ भी नहीं है, पेड़ है तो चिड़ियों के घोंसले नहीं है, क्योंकि चिड़ियां भी परिंदे भी ऐसी जगह घोंसले बनाती हैं जहां उनको पानी आसानी से मिल जाए, दूर दूर तक पानी का पता नहीं है। हाजरा अपने बेटे इस्माइल के पानी के लिए दौड़ रही है, कभी सफा तो कभी मरवा, कभी मरवा तो कभी सफा, 7 चक्कर लगाती है, पानी नहीं मिलता। इस पहाड़ी से झांक कर देखती है, कोई कबीला नहीं मिलता, इधर देखती है कोई गांव आबाद नहीं है, इधर देखती है कोई काफिला आ रहा है तो उससे पानी ले लूं, नहीं आ रहा है, 7 चक्कर। और कहते हो इस्लाम ने औरत को 4 दीवारी में कैद कर दिया, बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। औरत को इस्लाम ने इज्जत नहीं दी, इस्लाम ने औरत को इतनी इज्जत दी कि अगर मीडिया वाले हाजरा के इस वाक़े से अगर इबरत लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाजरा जहां जहां दौड़ी, जैसे जैसे दौड़ी, जिस जिस जगह पर उसने अपने कदम रखे, जहां तेज दौड़ी वहां तेज दौड़ना, जहां आहिस्ता दौड़ी वहां आहिस्ता दौड़ना, उसको अपनी अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया है। एक औरत के नक्शे पा को, एक औरत के पैरों के निशान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया। इससे ज्यादा एक औरत को इज्जत कौन सा धर्म दे सकता है, कौन सा मजहब दे सकता है? हाजरा की सुन्नत को जब तक कोई मुसलमान जिंदा नहीं करता, अल्लाह ताला उसको अपनी इबादत कबूल नहीं करता, उसका हज नहीं मानता, उसका उम्रा कबूल नहीं करता। एक औरत के नक्शे कदम को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया। औरत को पाप की देवी कहने वालों, आदम को जन्नत से निकलवाने वाली औरत शतरूपा, हिववती को जिम्मेदार कहलाने वाली मनुस्मृति, जरा तसव्वुर करो, आपने औरत को पाप की देवी कहा है, इस्लाम ने औरत को पाप की देवी नहीं घर की मलका कहा है। इस्लाम ने औरत को जो इज्जत दी है, दुनिया के किसी मजहब में औरत